Well, breaking news, in fact, coming in, the murky Vyapam scam mystery seems to be deepening. This is the biggest revelation in the scam. India Today has accessed the Special Task Force FIR report in the scam. The report was filed on 25th February this year and names a minister's wife. The identity of this minister's wife has not been revealed yet. So this is the biggest mystery in the FIR. The clues to the identity of this minister's wife lie in the hard disk of one of the Vyapam official and accused Pankaj Trivedi. The hard drive contains Excel sheets that detail the names of all those who were allegedly involved in the scam. In fact, the Excel sheet has code names for high-profile politicians. The Excel sheets allegedly contains names of Lakshmikant Sharma, Uma Bharti and Madhya Pradesh Governor Ram Naresh Yadav. Joining me now for more on this is Gaurav Sawant, our Strategic Affairs editor, and also my colleague from Aaj Tak, Arvind Ojha, who in fact accessed this exclusive detail for us. Gaurav, now the CBI will of course be investigating this, but with this mystery, around the minister's wife, one thing is very clear: high and mighty. There are many high and mighty, those who are still left to be questioned, still yet to be arrested. This is extremely significant, the information that our colleague Arvind Ojha has been able to get out of his sources in Madhya Pradesh. Now the SIT claimed that they've been investigating this matter in the right earnest, but there are several loopholes that seem to be appearing in these investigations, and Arvind has accessed this STF FIR. ये बहुत महत्वपूर्ण है अरविंद, ये जो FIR है, क्योंकि इसमें जो एक्सेल शीट बनाई गई थी, इसमें कई नाम आए और कई नाम की पहचान की ही नहीं गई। ये इतना महत्वपूर्ण कैसे है? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये STF की FIR आप देख पा रहे हैं। इसमें राज्यपाल हैं, वो आरोपी के तौर पर हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, वो भी आरोपी के तौर पर हैं, और आरोपियों के तमाम नाम हैं। और जो ये खुलासा FIR करती है कि जो व्यापम के अधिकारी थे पंकज त्रिवेदी, उन्होंने बाकायदा एक एक्सेल शीट तैयार की थी जिसमें जो बड़े बड़े नेताओं थे उनकी जो पैरवी आती थी उनके नाम थे, लेकिन सारे नाम कोड वर्ड में लिखे गए थे। जैसे मिनिस्टर कोड वर्ड था, गवर्नर कोड वर्ड था, एक जो कोड वर्ड था मिनिस्टर वाइफ, मंत्राणी, उस कोड को डिकोड करने की कोशिश नहीं की गई। काफी गोलमोल इस FIR में उसका जवाब दिया गया कि जब पंकज त्रिवेदी, जो सारा कोडवर्ड, जिनके पास सारे नाम थे, उन्होंने सारे कोडवर्ड STF के सामने डिकोड कर दिए, लेकिन मंत्राणी, मिनिस्टर वाइफ का जो कोड था वो डिकोड नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इसमें कुछ घालमेल दिखता है, और FIR हमारे पास एक्सक्लूसिव पड़ी हुई है। And this is extremely significant at this stage, Ankit. The STF has been carrying out an investigation in this case, as Arvind and our SIT, our team has been figuring out throughout as they go through reams and reams of documents in this scam, in the Vyapam scam. It emerges that the name of the governor's son came out, the name of the governor came out, the name of the education minister at that time came out. He went to jail, his OSD went to jail, several other names came out. But that minister wife, और ये मुझे पढ़कर बताइए। Gaurav, also very quickly, if I can interrupt you with one thing. देखिए, इस पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जो भोपाल की STF है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसके बाद व्यापम के अधिकारियों से व्यापम के दफ्तर में जाकर बाकायदा एक हार्ड डिस्क है उसको कब्जे में लेती है। उसके बाद CFSL गांधीनगर जाता है, वहां से उसकी पूरी छानबीन की जाती है। उसके बाद जब जो एक्सेल शीट होती है, उसी एक्सेल शीट के जरिए दरअसल STF जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ती है। उस एक्सेल शीट में राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम होता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उनके बेटे का नाम आता है इसमें, लक्ष्मीकांत शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम होता है। कोडवर्ड में उनका नाम मंत्री दिया होता है, मंत्री श्रेणी में उनको गिरफ्तार किया जाता है। लक्ष्मीकांत शर्मा अभी जेल में है, लेकिन ये कोडवर्ड ऐसा लगता है कि जानबूझ के डिकोड नहीं किया गया। पंकज त्रिवेदी से इस बारे में पूछताछ की गई, उनका कहना था कि मंत्राणी नाम की जो सिफारिश थी, मिनिस्टर वाइफ की जो सिफारिश थी, वो लक्ष्मीकांत शर्मा जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनके दफ्तर से आई थी। अब लक्ष्मीकांत शर्मा, ये पूरा राज जानते हैं कि मंत्राणी कौन है, मिनिस्टर वाइफ कौन है, लेकिन वो फिलहाल जेल में है। और विपक्ष इस पर सवाल भी उठा चुका है कि आखिर ये महिला कौन है, इतनी ताकतवर है कि जांच का दायरा उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। एंड दिस अंकित बिकम्स एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। द इन्वेस्टिगेटर्स रीच द राजभवन, दे रीच्ड the education Gaurav, minister, one question that I would like to ask you and Arvind both is the fact that the Congress party
has alleged that it's Shivraj Singh Chauhan's wife who needs to be investigated into this. Digvijay Singh has come up with some SMS trail in which he says that she was the one who was recommending people. How significant does all this become in the light that Arvind, the new clues that Arvind has got us? दाखिला कराया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर को जमानत दे दी गई। पूर्व शिक्षा यार, what the hell? Latest information coming in as far as the Vyapam scam is concerned. Gaurav, I was asking you before, the Congress leaders, Digvijay Singh specifically, has in fact targeted Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's wife into this entire case. He has said that he has a SMS trail that has been given to STF, which clearly shows that Chief Minister's wife in fact was pushing some cases. In the light of the new development that Arvind Ojha has broken on India Today, how does all this become significant? This indeed becomes extremely significant in the light of what the Congress has been alleging for quite some time in this case. Arvind, जो सवाल कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष मध्य प्रदेश में उठा रहा है कि इस पूरी साजिश के तार केवल किसी मंत्री के घर या केवल राज्यपाल के घर तक नहीं जाते, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कुछ उत्तर देने की आवश्यकता है। इस एफआईआर को अगर आप देखें तो इसके बाद ये और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि वो मंत्री की पत्नी या वो मंत्राणी कौन है। बिल्कुल ये सवाल है, लेकिन जो एफआईआर है उसमें बाकायदा कई बार रिपीट भी किया गया और ये भी लिखा गया, जो पंकज त्रिवेदी हैं व्यापम के जो नियंत्रक थे पूरा, उन्होंने ये खुलासा किया था कि ये कोडवर्ड था। लेकिन ये जो सिफारिश आई थी मंत्राणी, एक पर्ची, एक सिफारिश आई थी, जो एक अभ्यर्थी था, जो स्टूडेंट था, कि उनकी सिफारिश आई थी, कईयों की नौकरियां इसमें लगाई गई। उसमें सिफारिश में ऊपर नाम बाकायदा लिखा हुआ था मिनिस्टर वाइफ, लेकिन वो कोड डिकोड नहीं किया गया क्योंकि पंकज त्रिवेदी ने सारे कोड तो डिकोड कर दिए। राज्यपाल का नाम लिया, लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम। सूत्रों ने ये बताया कि आखिर ये क्यों नहीं डिकोड किया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो सूत्र बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि एसएमएस कुछ भेजे गए थे और ये एसएमएस एक उक्त टेलीफोन नंबर से भेजे गए थे जो मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े हैं। क्या इस पर आरोप ये था, लेकिन क्या इसमें सच्चाई, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था, क्या इसमें कोई तथ्य निकल कर आए हैं? जी देखिए, अभी पूरी ये जांच चल रही थी, अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि व्यापम घोटाले में पूरी सरकार पर जो पूरी सरकार थी वो शक के दायरे में थी। पूर्व शिक्षा मंत्री पर आरोप, राज्यपाल पर आरोप, जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनके पीए पर आरोप, एफआईआर दर्ज हुई, अग्रिम जमानत मिली 24 घंटे के अंदर। हालांकि ये जरूर बात चौंकाती है क्योंकि उनके खिलाफ कई जो सेक्शन थे उनके खिलाफ वो ऐसे दर्शाते थे कि उसमें जमानत काफी मिलनी मुश्किल है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। कांग्रेस ने जरूर आरोप लगाया था जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी पर, लेकिन उसकी जांच अभी चल रही है, उस बात का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इस एफआईआर की अगर बात की जाए तो इस एफआईआर में तमाम आरोपियों के नाम है, राज्यपाल के नाम है, पूर्व शिक्षा मंत्री के नाम है, सारे कोड डिकोड किए गए, लेकिन एक जो कोड वर्ड है मिनिस्टर वाइफ, वो डिकोड क्यों नहीं हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसका उत्तर मध्य प्रदेश पुलिस को देना ही होगा, चाहे अदालत में या सीबीआई को। नाउ इट्स फॉर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट this FIR and that Excel sheet that you were talking about, Ankit. Why is it that certain names were decoded, but one particular name, no effort, or if at all if effort was made, why isn't it in public domain to know who the minister wife is? Thank you so much, Gaurav and Arvind, for bringing us that exclusive news break about this new mystery about the minister's wife. Moving